करते हैं। देशवासियों को नई सौगातों के आशीर्वाद देने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा का। स्वागत है सचिव आर्थिक कार्य विभाग श्री शक्तिकांत दास का। हर घर आंगन अब उम्मीदों के दियों से रोशन है। सुनहरे सपनों के साकार होने से साक्षात्कार कर रहा है नया भारत। आज का गौरवशाली दिन राष्ट्रीय गर्व और स्वर्ण के पर्व का दिन है। भारतीय जनमानस का स्वर्ण से भावनात्मक रिश्ता आज हम और आगे तक बढ़ा रहे हैं। स्वर्ण भारत की 3 योजनाओं का स्वर्ण शुभारंभ भारतीयों को दीपावली की एक सुनहरी भेंट है। अब हम माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती निर्मला सीतारमण से अनुरोध करते हैं कि कृपया सभी के स्वागत में अपने उद्गार व्यक्त करें। Honorable Prime Minister, Honorable Finance Minister, Honorable Minister of State Finance Jayant Sinha ji, Shri Shaktikant Das ji, distinguished dignitaries from trade associations, Gems and Jewelry Export Promotion Council, refineries, assaying and hallmarking centers, Indian Bullion Jewelers Association, the first beneficiaries of these new schemes, World Gold Council, officials from the Ministry of Finance, Commerce, banks, MMTC, Government Mint, and members of the print and electronic media, and of course, with due pardon, the Governor of Reserve Bank of India. It's my pleasure to extend a warm welcome to all of you all on this historic occasion on the launch of the 4 gold-related schemes today. These schemes are being announced in support of the Prime Minister's Make in India initiative, which is a flagship scheme. India's love for gold is as ancient as its culture and has only grown with times. A significant part of our savings are invested into gold bars, coins, and jewelry. We have traditionally considered gold as an investment in addition to its adornment value. India is one of the largest consumers of gold in the world and imports as much as 800 to 1,000 tons of gold each year. As per RBI, gold had contributed nearly 30% of our trade deficit during 2009-10 to 2011 and 12. Around a third of the demand for gold in the country is for investment purposes. Over 20,000 tons of gold, is held by households and institutions in India, which is lying as idle asset and not being put into productive use at all. If this gold could be monetized, it would reduce the country's dependence on import of gold across the time. We are happy that these 4 rather than 3 gold-related schemes are being introduced: gold monetization scheme, the sovereign gold bond, the Indian gold coin, and the Indian gold bullion. Although the gold coin and the gold bullion could be treated as one, as announced in the Union Budget 2015-16, and are now ready to be launched by the Honorable Prime Minister today. It is a privilege that Honorable Prime Minister will unveil these schemes today for us. I once again welcome the Honorable Prime Minister, the Finance Minister, and all other dignitaries on this occasion. Thank you very much. धन्यवाद माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण। देश की आर्थिक प्रगति से अब जन जन और जन का धन भी जुड़ेगा। उच्च गुणवत्ता वाला सोने का सिक्का भारतीय संप्रभुता के साथ विश्व में दमकेगा। भारतीयों के चेहरों पर सोनाली आभा तो चमकेगी ही चमकेगी। इंडिया भी अब शाइन करेगा गोल्ड की तरह। आइए देखते हैं इन्हीं योजनाओं पर एक फिल्म। हमारे देश में सोना एक प्रकार से सामाजिक जीवन का हिस्सा है। गोल्ड न केवल हमारे संकट में काम आता है, हमारी आर्थिक सुरक्षा का भी सहारा है। हर इंसान को सोने से एक अलग तरह का लगाव है। आज समय आ गया है हम देश में थोड़ा परिवर्तन लाएं। सोने को निष्क्रिय निवेश की जगह अपनी शक्ति बनाएं। सोना अब बनेगा आपकी और देश की आर्थिक शक्ति। पहले गोल्ड लॉकर में रखते थे और लॉकर का किराया हमें देना पड़ता था। अब
गोल्ड बैंक में रखेंगे और पैसा बैंक आपको ब्याज के रूप में देगा। प्रधानमंत्री लाए हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसके अंतर्गत आप अपना गोल्ड बैंक में जमा कर सकते हैं, पैसे भी ले सकते हैं और उस पर आपको ब्याज भी मिलेगा। इस स्कीम से देश को भी फायदा होगा, देश में सोने का आयात कम हो जाएगा। ये स्कीम हर भारतवासी के लिए है और सब इसमें निवेश भी कर सकते हैं। प्रमाणित असेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स में से किसी भी जगह सोने के असली मूल्य का आकलन करवा सकते हैं और सेफ कस्टडी में जमा करवा सकते हैं। किसी भी समय कच्चे सोने का न्यूनतम डिपॉजिट 30 ग्राम सोने के बराबर होगा। आप अपने डिपॉजिट की अवधि के लिए अब आकर्षक ब्याज भी कमा सकते हैं। जमाकर्ता के पास इसे सोने के रूप में या फिर समतुल्य रुपए में इसे लेने का विकल्प होगा। ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आपके लिए आय का एक अतिरिक्त माध्यम है। दूसरी योजना जो आप लोगों की सुविधा के लिए लाई जा रही है वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इसमें आपके हाथ में सोने के बार की जगह एक बॉन्ड आता है। उसका मूल्य सोने के वजन के जितना ही होता है और जिस दिन वो पेपर बॉन्ड वापस किया जाएगा उस दिन के सोने के मूल्य के बराबर आपको पैसे वापस दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1000 रुपए के सोने के दाम के हिसाब से ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा और 5 साल बाद जब आप ये बॉन्ड वापस करेंगे तो अगर उस समय सोने का दाम 2500 रुपए है तो उस बॉन्ड के बदले में आपको 2500 रुपए और उसके ऊपर बैंक द्वारा तय किया गया ब्याज भी मिलेगा। तो सुरक्षा की गारंटी वाली ये स्कीम हमारे देशवासियों को प्रधानमंत्री पेश कर रहे हैं। इस योजना के कुछ मुख्य तथ्य: ये बॉन्ड प्रति ग्राम सोना और उसके गुणांक में उपलब्ध है। न्यूनतम निवेश 2 ग्राम एवं अधिकतम निवेश 500 ग्राम तक कर सकते हैं। बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 8 वर्ष और 5, 6 तथा 7 वर्ष में पुनर्भुगतान की सुविधा भी है। यही बॉन्ड आप लोन के लिए कोलैटरल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो सभी भारतवासियों को अब असली सोना संभालने का जोखिम बिल्कुल नहीं। तीसरी योजना जो हम सब के लिए गर्व की बात है, अब हमारे भारत में अशोक चक्र वाले गोल्ड कॉइन भी उपलब्ध होंगे। आजादी के करीब 70 साल बाद भी हम अब तक फॉरेन गोल्ड कॉइन का ही उपयोग कर रहे हैं या गोल्ड बुलियन बार्स जो कि विदेशी हैं, उनका उपयोग करते आ रहे हैं। ये गोल्ड कॉइन भारत में ढला गया है और 24 कैरेट शुद्धता का होगा और इस पर अशोक चक्र का चिन्ह भी होगा। BIS द्वारा हॉलमार्क्ड ये गोल्ड कॉइन छेड़छाड़ रोधी पैकेजिंग और जालसाजी प्रतिरोधी खूबियों के साथ मिलेंगे। आप मुझे साथ दीजिए। अब घर में गोल्ड मत रखिए, उसकी सुरक्षा और उसका ब्याज, दो फायदे जरूर लाभ उठाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आर्थिक विजन को भारत मिशन मानकर भारतीय अर्थतंत्र की साख विश्व में मजबूत करने के महायज्ञ, जिसमें भारतीयों की भागीदारी और संपन्नता दोनों ही निहित हैं, के प्रति माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हम माननीय श्री अरुण जेटली जी से निवेदन करते हैं कि कृपया अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, श्री जयंत सिन्हा, श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर RBI, वित्त मंत्रालय के अधिकारीगण, बैंकर्स और अन्य महानुभाव, इस वर्ष के बजट में ये घोषणा की गई थी कि 3 विशेष योजनाएं सोने के संबंध में लाई जाएंगी। इस देश का एक स्वभाव रहा है, जो इस देश की सभ्यता का एक अंग है, कि लोग बचत करते हैं और दुनिया के बाकी देशों की तुलना में इस देश में सेविंग्स करना, बचत करना और ठीक समय पे सुरक्षा के लिए वो काम आना, ये उस सभ्यता और स्वभाव का एक हिस्सा है। लेकिन एक दूसरा स्वभाव भी था और वो था सोने के प्रति एक मोह।
और सोने के प्रति जो मोह था वो केवल ज्वेलरी जेवर के रूप में नहीं था, लेकिन रॉ सोने को रखने के दृष्टि से भी था। और इसलिए जो केवल सोना रखा जाता है घर में, जैसा कि अभी इस फिल्म में दिखलाया गया, वो निजी बचत तो बन सकता है, निजी सुरक्षा भी बन सकता है, न तो वो कमाता है और न ही देश के किसी काम में आता है। बचत के पीछे उद्देश्य होता है कि आपके लिए वो बचत हो, बचत के ऊपर आप थोड़ा कमा भी लें, उसका मूल्य भी बढ़ जाए, और जब वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर प्रवेश पड़ जाए तो देश के विकास के लिए उस बचत का प्रयोग हो जाए। उसी दृष्टि से ये तीनों योजनाएं बनाई गई हैं। पहली योजना कि जिनके पास रॉ गोल्ड है उस सोने को वो बैंक्स में जमा करवाएं, उसकी प्योरिटी टेस्ट होगी, और टेस्ट करने के बाद जितने समय तक वो बैंक्स में रहेगा उसके हिसाब से उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ब्याज की कमाई भी होगी। जब उसको आप वापस लेना चाहेंगे तो उस दिन जो बाजार में सोने की कीमत होगी वो कीमत और उसके ऊपर ब्याज आपको वापस मिल जाएगा। सोना आपकी सुरक्षा भी रहेगा, उस पर कमाई भी होगी, और देश में वो बचत समाज के लिए काम में भी आएगी। गोल्ड बॉन्ड स्कीम के पीछे एक दूसरा उद्देश्य भी है। उसमें ब्याज की दर थोड़ी ज्यादा रखी गई है ताकि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि गोल्ड बॉन्ड खरीदें। जो निर्मला जी ने बतलाया कि लगभग 1000 टन सोना इस देश में प्रतिवर्ष आता है, फॉरेन एक्सचेंज आउटगो होता है, और इसलिए बाहर से सोना आए इतनी बड़ी मात्रा में उसको डिस्करेज करने की आवश्यकता है। और इसलिए रॉ गोल्ड रखने की बजाय उसके स्थान पर गोल्ड बॉन्ड हो, और गोल्ड बॉन्ड का बचत की दृष्टि से वही लाभ होगा, सुरक्षा की दृष्टि से वही लाभ होगा जो मूल सोने का है। दाम भी वही होगा, ब्याज भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा उस पर, और जब भी आप चाहें तो आपको वही पैसा वापस मिल सकता है। गोल्ड कॉइन के पीछे ये उद्देश्य है कि अभी भी विदेशी गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार्स इस देश के अंदर चलती हैं, और इसके स्थान पर यह घोषणा हम लोगों ने की थी कि इस वर्ष भारतीय गोल्ड कॉइन बाजार के अंदर उतारा जाए। एक अच्छी मात्रा में ये गोल्ड कॉइन बने हैं, और जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, इस बार तो इसका औपचारिक उद्घाटन हो रहा है, और जैसे ही इसकी डिमांड बढ़ेगी इसकी सप्लाई भी गोल्ड कॉइन की भारत में जो बनेंगे उसको बढ़ाया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता इन तीनों योजनाओं का भरपूर लाभ लेगी, जिससे सोने की खपत जो देश में आता है गोल्ड बॉन्ड योजना की वजह से कम होगी। गोल्ड की जो सेविंग्स हैं वो देश के लिए काम भी आएंगी, और जो उसके मालिक हैं उनको उससे थोड़ा ब्याज की दृष्टि से लाभ भी होगा। मैं बहुत आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि आज उन्होंने औपचारिक रूप से इसका लॉन्च करने की अपनी सहमति दी है। मुझे विश्वास है कि योजनाएं देश के हित में होंगी और भरपूर सफल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री अरुण जेटली। बहुत सी शुरुआतें अब इतिहास में पहली बार होने लगी हैं। पहली बार भारत सरकार की तरफ से स्वर्ण सौगातें, अपने भारत में बना सोने का सिक्का, उन आदर्शों को अपने में समाए जो भारत को भारत बनाते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया इंडियन गोल्ड कॉइन और बुलियन का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। माननीय, ये कॉइन और बुलियन 24 कैरेट शुद्धता, 999 की परिशुद्धता और हॉलमार्क्ड है। एक तरफ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र और दूसरी तरफ महात्मा गांधी का चित्र, हमारी भारतीय संप्रभुता का प्रतीक। विश्व में हमारी विश्वसनीयता की साख और उसकी धाक का नाम ही तो नाम है, मेक इन इंडिया। तो अब डिजिटल इंडिया को भी प्रेरणा मानते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कृपया इन 3 स्वर्ण योजनाओं को समर्पित वेब पेज का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर करें।
इस सुनहरे दिन पर आज हमारे प्रधानमंत्री ने 3 नई योजनाएं शुरू की हैं। इस वेबसाइट में 3 योजनाओं के लाभ और तथ्यों के बारे में हमें सूचित किया गया है। यह वेबसाइट अभी के लिए अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होगी। चलिए पहली योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। यह वेबसाइट बॉन्ड के बारे में बात करती है, कहां से इसे खरीद सकते हैं और कौन बॉन्ड जारी करता है। नेविगेशन की आसानी के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। यह वेबसाइट भी अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। आइए दूसरी स्कीम की ओर चलते हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। यह वेबसाइट बताती है हमें कि हम गोल्ड कहां जमा कर सकते हैं, सोने की शुद्धता कहां पे जांची जा सकती है और इस स्कीम में जमा किया आपका सोना जाता कहां है। यह वेबसाइट भी अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। तीसरी स्कीम है भारतीय स्वर्ण सिक्का। यह पहला राष्ट्रीय स्वर्ण सिक्का है। इस वेबसाइट पर आपको सिक्के की कीमत, आप यह सिक्का कहां से खरीद सकते हैं और सिक्के की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त होगी। इस लिंक पर भी आसान नेविगेशन की सुविधा दी गई है। ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई 3 सोने की योजनाएं। आइए सोने को मोनेटाइज करें और राष्ट्र सेवा का हिस्सा बनने का गर्व महसूस करें, सुरक्षित करें और कमाएं ब्याज भी। बॉन्ड्स देंगे सुविधा और सुरक्षा और देंगे सोने के रिटर्न्स भी। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुनय है कि कृपया पहले 6 लाभार्थी जिन्होंने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश किया है, उन्हें निवेश प्रमाण पत्र प्रदान करके इन योजना का शुभारंभ करें। ये है सरस्वती शर्मा, 34 ग्राम सोना इन्होंने जमा किया है। और इसके बाद जनाब कुर्बान अली, इन्होंने 40 ग्राम सोना जमा किया है। ये कहते हैं सोना सेफ रहेगा, देश उन्नति करेगा तो हर व्यक्ति उन्नति करेगा। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं। बेबी समायरा छाबड़ा 8 साल की हैं, माइनर हैं, 200 ग्राम सोना इन्होंने जमा किया है। ये डॉक्टर बनना चाहती हैं और कॉरपोरेशन बैंक की कस्टमर हैं। आज ये अपने दादाजी के साथ आई हैं। और अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए निवेश प्रमाण पत्र मोहतरमा नूरी निशात, इन्होंने 20 ग्राम का बॉन्ड खरीदा है। 10 साल बाद घर इन्हें लेना है तो ब्याज से बचत जो होगी उससे मदद हो जाएगी। देना बैंक की कस्टमर है। डॉक्टर कनिका कुमार, इन्होंने 10 ग्राम का बॉन्ड लिया है। इनका मानना है कि सेफ फ्यूचर के लिए ये अच्छा रास्ता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कस्टमर है। श्री धीरज बत्रा 50 ग्राम बॉन्ड इन्होंने खरीदा है। ये कहते हैं बेटी के लिए ये अच्छा निवेश है। कॉरपोरेशन बैंक के ये कस्टमर हैं। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी की देश के हर आयाम को जगमगाने की प्रतिभा, प्रतिबद्धता और ऊर्जा को देखकर ये राष्ट्र चमत्कृत भी है और अचंभित भी। 1.5 साल के सूर्योदय से देश में उम्मीदों का उजाला करने वाले, देश का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने वाले, नई दिशा, नई सोच के तोहफे भारत को देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, अब भारत खुलकर, खिलकर और हंसकर बोल रहा है, प्रगति और समृद्धि के नए दरवाजे खोल रहा है। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी कि कृपया अपने स्वर्णिम शब्दों में हम सबको अपनी शुभकामनाएं दें। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अरुण जेटली जी, निर्मला जी, जयंत सिन्हा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, हम बचपन से सुनते आए थे सोने पे सुहागा, लेकिन अब तक समझ नहीं आया था कि सोने पे सुहागा होता क्या है। आज हमारे वित्त मंत्री जी ने हमें समझा दिया
सोने पर सुहागा क्या होता है। देश के लिए योजना सच्चे अर्थ में सोने पे सुहागा इस भाव को चरितार्थ करती है। और हम ऐसे गरीब देश हैं जिसके पास 20,000 टन सोना यूं ही पड़ा है। और शायद हमारी गरीबी का कारण भी यही है कि 20,000 टन सोना पड़ा हुआ है। और इसलिए भारत को गरीब रहने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। कोई लॉजिक ये नहीं समझा पा रहा है कि हमें गरीब क्यों रहना चाहिए। अगर हम थोड़ी कोशिश करें, सही दिशा में कोशिश करें, तो हम पर जो ये टैग लगा है उस टैग से मुक्ति पा सकते हैं। और उस रास्ते का एक महत्वपूर्ण अहम कदम आज है ये गोल्ड संबंधित भिन्न भिन्न योजनाएं। अब मैं बचपन से सुनता आया था लोगों से कि भाई आधी रात को काम आता है, सोना रखो, आधी रात को काम आता है, कभी जरूरत पड़ जाए तो काम आ जाएगा। लेकिन मैंने सैकड़ों लोगों को पूछा कि भाई कभी आपकी जिंदगी में ऐसी नौबत आई है क्या? मुझे अभी तक कोई मिला नहीं जिसको आधी रात उसका उपयोग हुआ हो। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उसके दिमाग में फिट है कि भाई ये रखो, कभी आधी रात काम आ जाएगा। और ये जो हमारे बने बनाए कुछ विचार ने घर कर लिया है, उसमें से समाज को बाहर लाना ये आसान काम नहीं है। आप समझा करके कितने ही पढ़े लिखे व्यक्ति को भी कहोगे ये छोड़ो, आसान नहीं है। इवन रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी अपनी पत्नी कुछ मांगेगी तो गोल्ड लाना ही पड़ेगा। जबकि उनका अर्थशास्त्र गोल्ड के शब्द में अलग होगा, लेकिन गृह शास्त्र अलग होगा। तो ये जो अवस्था है, उस अवस्था में कोई न कोई इनोवेटिव, क्रिएटिव हमने व्यवस्थाएं विकसित करनी पड़ेगी। दूसरी एक सोच बनी हुई है हमारे देश में, एक ऐसा परसेप्शन है दुनिया में कि भारत में महिलाओं के पास कुछ होता नहीं है। मकान है तो पति के नाम पे, पिता के नाम पे, गाड़ी है तो पति या बेटे के नाम पे, खेत है तो पति, महिला के पास। लेकिन बारीकी से देखेंगे तो सोना एक होता है जो महिला की ताकत का विषय होता है। ये ऐसे बनी हुई व्यवस्था नहीं है, कोई सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था का बहुत बड़ा ताकतवर हिस्सा रहा है जो विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा पहलू है। उसके नाम पे मकान नहीं होगा, लेकिन उसके पास ये संपत्ति उसके मालिकी की होती है। और परिवार भी इसको क्वेश्चन नहीं करता, बेटे भी क्वेश्चन नहीं करते, तो मां का है। ये जो हमारा संस्कार का एक उत्तम पहलू भी है, जिसने विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक ऐसा सामाजिक जीवन में व्यवस्था विकसित की, एंड विद द हेल्प ऑफ गोल्ड ये हमारा स्ट्रक्चर विकसित हुआ है। तो उसको बरकरार भी रखना है। हमारी माताएं, बहनें, उनके अंदर जो सुरक्षा का भाव है ये बरकरार रहना चाहिए। हम इस स्कीम में ये विश्वास अगर पहुंचाते हैं तो शायद इसकी सबसे ज्यादा सफलता का कारण महिलाएं बनेगी। दूसरा, हमने देखा होगा हमारे यहां संपन्न परिवारों के फैमिली डॉक्टर होते हैं, इवन मध्यम वर्ग परिवार के भी फैमिली डॉक्टर होते हैं।
लेकिन निम्न मध्यम वर्ग गरीब परिवार के फैमिली डॉक्टर नहीं होते हैं। लेकिन हमारे देश में हर परिवार का फैमिली गोल्डस्मिथ होता है। कितना बड़ा विश्वास होता है। 3-3, 4-4 पीढ़ी से वो सोनार, यानी वो अमेरिका में रहना गया होगा लेकिन अपने गांव का सोनार है, उसी को ढूंढेगा, भाई देखो मैं भेजता हूं, जरा ये कर देना है। ये विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी, यानी सदियों की तपस्या से बनती है। उस ताकत को भी हमें पहचानना होगा। और इसलिए जब योजना के विषय में मेरे से चर्चा हो रही थी तो श्रीमान दास को मैं कह रहा था कि जो गांव के छोटे छोटे गोल्डस्मिथ हैं वे हमारे एजेंट कैसे बन सकते इस योजना के। एक समय ऐसा था 1968, गोल्डस्मिथ सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था। मैं गुजरात के पाटन नाम के एक शहर में बचपन में कुछ समय बिताया था। तो जिस गली में मैं रहता था वो सोनी की गली थी। वहाँ एक सज्जन थे, उनका एक कार्यक्रम रहता था। सुबह अखबार आता था, वो सिगरेट जलाते थे और अखबार में जहाँ भी मोरारजी भाई का फोटो हो तो उसको जलाते थे। इतना गुस्सा वो करते थे क्योंकि उनको लगता था भाई हमारा तो सारी रोजी रोटी चली गई। हम इस योजना के द्वारा ऐसी कैसी व्यवस्था विकसित करें ताकि हम उसको फिर से एक बार एम्पावर करें। वो हमारा इस प्रोफेशन का एजेंट कैसे बने, क्योंकि उसका विश्वास है। मैं किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बैंक से ज्यादा उसको अपने गांव के सोनार पे भरोसा है। वो बड़े से बड़े ज्वेलरी के शोरूम में जाएगा, लाने के बाद अपने सोनार के यार जरा चेक कर ले भाई, कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के यहाँ, जरा भाई तुम चेक करो, मैं ले तो आया हूं। ये एक हमारी इस व्यवस्था की बहुत बड़ी कड़ी बन सकती है और ये एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। हम उनको गोल्ड बॉन्ड के लिए किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं, उनको कैसे विश्वास दिला सकते हैं, हम एक डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म कैसे डेवलप कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि डिपार्टमेंट के लोग इस पर सोचें। अगर ये हम कर पाएं तो शायद एकदम से ये बढ़ेगा। सरकार में कोई योजना बजट में आए और इतने कम समय में ये लागू हो जाए और टारगेट तय किया गया धनतेरस के पहले, क्योंकि भारत में शादी में सोने का जितना महत्व है उससे ज्यादा धनतेरस पर है। और सबसे ज्यादा इंपोर्ट इन्हीं दिनों में हुआ होगा, क्योंकि लोगों को लगता होगा भाई बहुत बड़ा मार्केट खुलने वाला है तो हमको। अब ये देखिए 1000 टन सोना हर वर्ष हम इंपोर्ट करते हैं और ये इतनी बड़ी शक्ति हमारी अगर बिना उपयोग की पड़ी रहे, किसी ने कोई बहुत बड़ा जलाशय बनाया हो, डैम बनाया हो, अरबों खरबों रुपए खर्च किए हो, लेकिन अगर कैनाल नेटवर्क न हो और किसानों के पास पहुंचेगा नहीं तो क्या करना उसको। ये हमारा 20,000 टन सोने की यही हाल है जी। हमें इसको राष्ट्र की शक्ति में परिवर्तित करना है और सामाजिक सुरक्षा में अधिक बलवान बनाना है। इसके एक पहलू नहीं संभव होगा। यह सामाजिक सुरक्षा का उसका जो पहलू है उसको हमें और स्ट्रेंथन करना है और राष्ट्रीय विकास की यात्रा में वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सके, इस प्रकार का हमने विश्वास जताना है, मैकेनिज्म बनाना है। आज एक चिंता तो लोगों को रहती है कि भाई कहाँ रखे, 15 दिन बाहर जाना है तो सब रखे कहाँ, रिश्तेदार के यहाँ भी रखे कि क्या रखे, कैसा, उसको मन में चिंता रहती है। यह सुरक्षा का सबसे बड़ा टेंशन था वो इस योजना से मिट जाता है। उसको विश्वास बन जाता है हाँ भाई हाँ मेरा पैसा सुरक्षित है। कभी कभार व्यक्ति गोल्ड में इसलिए करता है भी रुपये के थैले कहाँ रखेंगे, इतनी छोटी जगह में गोल्ड आ जाएगा तो इतने बड़े थैले वाला रुपये, तो हम जानते हैं वो क्या होता है सब।
लेकिन अगर आज वो उसके पास बॉन्ड आ गया तो अपना 4 कागज रखने, चोर भी आएगा तो हाथ नहीं लगाएगा, वो कहेगा ये कागज को ले जाना है, चोर नहीं ले जाना है भाई, ये तो बेकार है। यानी सुरक्षा की गारंटी, और ये वो बेच भी सकता है। सोना आधी रात को बिका हो वो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं एक गोल्ड बॉन्ड जरूरत पड़ने पर आधी रात को बेच सकता है। कहीं अस्पताल में जाना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा, डॉक्टर कहता है पहले पैसे लाओ, गोल्ड बॉन्ड दे दिया, ऑपरेशन हो जाएगा। ये इतनी संभावना है जो सोने में नहीं है, यानी एक प्लस पॉइंट है इसमें। हम इन चीजों को बड़ा आर्टिकुलेट करके लोगों के साथ कैसे पहुंचाए। उसी प्रकार से हमारा जो ये जमाए ऐसा ही गोल्ड पड़ा हुआ है, बैंक में आएगा और लंबे समय के लिए आएगा तो ज्वेलरी के लिए चला जाएगा। ज्वेलरी के लिए चला जाएगा तो मैं मानता हूं कि ज्वेलरी क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार से गोल्ड सरलता से मिलेगा, उनके सामने कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। एक ज्वेलरी के बिजनेस के वालों के लिए बैंक से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार गोल्ड मिल जाना, लोकली मिल जाना, ये अपने आप में हमारे ज्वेलरी के प्रमोशन के लिए बहुत सुविधा का कारण बनेगा। और इसलिए जो ज्वेलरी के दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़े आज गोल्ड कंज्यूमर हैं। अभी मुझे कल कोई रिपोर्ट बता रहा था कि हमने चाइना को भी इसमें पीछे छोड़ दिया, शायद 562 टन अब तक 9 महीने में शायद हमने गोल्ड खरीदा है, और चाइना शायद 548 पर खड़ा है। अगर इतना हम तेजी से ये कर रहे हैं तो ये व्यवस्था में हम बदलाव ला सकते हैं। मंथली मॉनिटरिंग कर करके हम टारगेट तय कर सकते हैं क्या कि इस मंथ घरों का गोल्ड बैंक में आएगा और उतनी मात्रा में बाहर से आना कम होगा। ये हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित कर सकते हैं क्या, तो शायद हम इस सारे नई व्यवस्था को एक सचमुच में राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास के काम में इसको हम जोड़ सकते हैं। इसके साथ एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय भी है। क्या कारण है कि हम अभी भी विदेशी मार्के से सोना, और आज भी पूछते हैं अच्छा भाई वो मार्का है, मुझे तो नाम वाम याद नहीं क्योंकि मेरा कोई दुनिया से लेना देना है नहीं, लेकिन सुनते आए हैं। अब वो विश्वास से कहेगा कि भाई अशोक चक्र है क्या, मेरे देश का उस पर भरोसा है क्या। ये हमने ब्रांड पॉपुलर करना चाहिए। अब हमने तय करना चाहिए कि हम अब विदेशी मार्का वाला बाजार में हम खुद ही नहीं देंगे। हम ज्वेलरी में होंगे, हम गोल्ड बेचने वाले लोग होंगे, हम नहीं करेंगे। ये ठीक है कि अभी इस धनतेरस तो शायद 100-125 सेंटर पर ही मिलेगा शायद, हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जिन लोगों को धनतेरस पर सोना खरीदना है उनको कुछ जगह पे तो मिल ही जाएगा, लेकिन आगे चल करके ये व्यवस्था, लेकिन एक राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ना चाहिए और हमने इसको बल देना चाहिए। और इतने कम समय में वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम ने पूरी स्कीम को वर्कआउट किया, उसको लॉन्च किया। टेक्नोलॉजी भी इसमें है और मैन्युफैक्चरिंग भी है, सारी व्यवस्थाएं नए सिरे से करनी पड़ी है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं की। और मैं जब इस कॉइन को देखा, शायद मैंने अपनी रुपये वगैरह पर जो गांधी जी देखे हैं, इसमें बहुत बढ़िया उनका चित्र निकला है गांधी जी का। यानी जिसने भी इसका आर्ट वर्क किया है उसको मैं बधाई देता हूँ। इतना यानी एक फीलिंग आता है, कोई आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा, बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क किया है। यानी इसके लिए मेरा स्वभाव है इन चीज़ों में मेरी रुचि होने के कारण मैं थोड़ा प्रकार से देखता रहता हूँ। लेकिन मैं बधाई देता हूँ पूरी टीम को, और उन को विशेष बधाई देता हूँ और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि धनतेरस के इस पावन पर्व से और दिवाली की शुभकामनाओं के साथ भारत स्वर्णिम युग के लिए आगे बढ़े और आपका 20,000 टन सोना भारत के स्वर्णिम युग की ओर जाने के लिए काफ़ी है, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए भारत को स्वर्णिम युग बनाने के लिए जिनके पास सोना है वो ये सुनहरे अवसर को न छोड़े और सोने पर सुहागा उसका फायदा वो भी उठाए, यही मेरी अपेक्षा और शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।
और अब सचिव आर्थिक कार्य विभाग श्री शक्तिकांत दास से निवेदन है कि कृपया आभार प्रकट करें। I have the privilege to present the vote of thanks to all the dignitaries for the launching ceremony of all the gold schemes, which have a potential to usher in a kind of paradigm shift in the way we look at gold. May I take this opportunity to mention, in the words of one of the greatest economists of his times, John Keynes, from his celebrated book, The General Theory. He had said, "The difficulty lies," I repeat, "the difficulty lies not in the new ideas, but in escaping from the old ones." The gold schemes that the Honorable Prime Minister has given to all of us is an idea which is novel and requires a great effort in effecting a change in the mindset of our people. The benefits of these schemes will accrue to the nation as a whole in due course of time. We will have to be patient and continue to work hard for the success of these schemes. The Honorable Prime Minister has also spelled out the approach that we should adopt in popularizing these schemes, and I assure the Honorable Prime Minister that we will put in our best efforts to work upon these ideas and to make a success out of these schemes. With this, let me take the opportunity to extend our heartfelt and sincere gratitude to the Honorable Prime Minister for taking out his valuable time to be with us for launching of these schemes. Sir, we are very much grateful to you. We are also grateful to Honorable Finance Minister, Minister of State Commerce and Industry, and Minister of State Finance for their continuous guidance and support to the teams working in the Ministry of Finance and in the Ministry of Commerce in preparation of these schemes. We are grateful that they could spare their time to participate in this event today. The esteemed audience for this occasion has traveled from far and wide to mark their presence for this ceremony today. We are extremely thankful to them and look forward to the continued support of the gems and jewelry industry and the banks for taking the programs forward. Let me also thank the teams from the Reserve Bank of India, the World Gold Council, the MMTC, the Indian Banks Association, and all others who have been working tirelessly for making this event a grand success. Thank you. धन्यवाद श्री शक्तिकांत दास। राष्ट्र विकास के सुनहरे पथ पर मुझे आप सबकी क्षमा मांगनी है, मुझे आने में विलम्ब हुआ था क्योंकि मैं सुबह राष्ट्रपति भवन में मेरा एक कार्यक्रम था तो मुझे देर हो गई थी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। राष्ट्र विकास के सुनहरे पथ पर नए मील के पत्थर आपने स्थापित किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्वर्णिम शब्दों के लिए। आप सभी है कि कृपया चाय पर पधारें।